Hello everyone and welcome to another video of the recap of Kingdom of Chess Udaipur tournament, and day 4 has been successfully completed, and well, here is the recap and the analysis video. So without further ado, let's jump into the game. This is round 7 for Successfully Neman. completed is a subjective statement. Okay, day 4 is completed, but so yeah, let's jump into the video, and this is Nemang's game of round 7, and it's a classy game, miniature. You just explain it. You start with e4. The game started with check my e4, messages. e5, knight f3, knight c6. We enter the Italian game. Standard है. Game 1 में भी Italian आई थी, if you guys remember. Same position आई थी. Game 1 my opponent took with the knight this pawn, and but transpose होके यही position आ गई. It continued, and instead of castling, I played pawn takes pawn, and my opponent played bishop takes bishop to b4 check, and I blocked, and फिर bishop straight हो गया, and it was a different kind of game. But in this game, I learned from my last game. I analyzed it, and I found the correct move was to castle. Afterwards, opponent took the pawn. This is already pretty greedy of my opponent. I didn't think he knew the theory or any. He calculated very well, because I am getting this check and my queen is open to coming to the d5 to attack. I'm winning back my piece, so it's not really a sacrifice. In this position, I give another check so that if the opponent's kings move to f file, I can pick up the bishop with check. My opponent played g6 in this position, and ये induce कराना तो bonus ही है क्योंकि I can use this file to attack. Yeah. In this position, my opponent started moving his queen repeatedly, like bar he's moved his queen, and I think the correct way to go here is to develop your knight, and before that just play d6. So this is the correct way to open your pieces, and it's still a game. Yeah. Although white is a pawn down, but white has an advantage in this position because of piece activity. And my opponent didn't really get the gist. He desperately wanted to trade the queens, so he went queen f6 in this position. And इसके बाद I think I could have directly played bishop to b2. Yeah. And after queen takes, bishop takes, I'm threatening to win his rook. Yeah. But I didn't see it. I saw this move later after I played my move, which is e5. And e5 खेलने के बाद my opponent again moved his queen, and I threatened to play e6 in this position, because after playing e6, if his queen comes into middle, I can just capture the queen, capture on f6 twice, and again I'll be a piece up. फिर से मेरे opponent अपनी queen move करी. He came to e6 blocking the pawn, and मैं knight से attack करने लगा और उसने फिर से अपनी queen move करी. And then I played d6, e6. The line I calculated here was queen takes knight. Yeah. लिख दिखाई देता है. हाँ दिखा दे. Queen takes knight, queen here. आगे कर दे arrow. अच्छा हाँ. e7 pawn मार देगा, और अगर बिशप से मारा तो rook e1. हाँ rook e1. Rook e1 now threatening rook takes knight, and afterwards queen takes knight as well. तो उधर जाएगा अगर तो queen takes knight. No. उधर जाएगा तो rook takes knight. अच्छा हाँ. इधर जाएगा तो rook takes knight. Yeah. And अगर दूसरी डायरेक्शन में जाता है, ये मारा तो अच्छा. एक सेकंड वेट, इधर जाएगा. इधर तो ये था ना तेरा अरे बिशप f6. हाँ बिशप f6. राइट बिशप f6. राइट. ठीक है, पोजीशन क्रशिंग है. या बहुत लैग हो रहा है. हाँ ठीक है. हाँ बट इन दिस तो ये सब कैलकुलेट किया, बट मेरा ओपोनेंट कोलैप्स हो गया पूरा यहाँ पे. देयर वाज नॉट मच टू बी डन. उसने पॉन टेक्स किया, मैंने रुक मार लिया. उसने अभी भी नाइट नहीं मारा. ही डिफेंडेड हिज नाइट, एंड इन दिस पोजीशन आई टुक नाइट टेक्स e7 एंड ब्लैक रिजाइंड. Nice. That was a 18 move game. So he played a miniature और आधे घंटे में निकल गया हॉल से. Of course there is nothing to be done in this position. वो दिखाइयो. हाँ कुछ नहीं था. हाँ राइट. एक ये मैं सोच रहा था कि अगर इधर जाता है ना ये, तो instead of taking the knight I could also just give this check, and after after my opponent went there, then I could take the knight, and this is mate. And अगर वो दूसरी तरफ आता है after knight check के बाद इधर, तो I can queen takes knight and mate.
Oh, queen takes 9. Okay, right. Beautiful finish. But Yeah, अच्छा था. Yeah, this is a nice attacking game. Yeah, it's nice, man. I mean, to have such an attacking opening because my game was the complete opposite. She was also an unrated opponent. Okay, spoiler alert. She was also unrated, but I took a long time to convert this. I played the English opening and I played the normal stuff. I need to have at least one attacking opening in which there is chaos on the board to get quick wins because I grinded this for like 3 hours or something. So after this bishop g2, yeah, I calculated some. There is this knight e5 line with d4 fork, but there is always bishop f2, and it's not something I like to go into. तो फिर इसने मैंने बिशप जी टू चला, कासल हुआ, मैंने ई3 चला विद द आइडिया ऑफ डी4 एंड उसका डी5 आ गया यार. एंड डी5 यहाँ पे मुझे लगा कि ओपनिंग थोड़ी सी सही नहीं हुई और यहाँ पे मैंने बहुत वो करके पॉन मार लिया. आई थॉट कि नाइट से मारेगा तो एक तो ये पीस भी हैंगिंग है, ये पीस भी हैंगिंग है, और अगर वो नाइट मारेंगे तो बी से मार के डी4 आ रहा है, डी4 का थ्रेड भी है. लाइन बेसिकली ये लाइन थी कि नाइट मारा तो एक तो मैं ये भी मार सकता हूँ विच इज़ व्हाट हैपेंड इन द गेम, बट मैंने सोचा था ये भी मार सकता हूँ विच इज़ अ बैकअप थिंग. ये मारा और अगर नाइट मारेगा तो मैं डी4 चल दूँगा. बट यहाँ पे ये था कि बिशप e7 चल सकता है. अपन इंजन लाइन में कुछ बिशप g4 भी दिखा रहा है, बट आई थिंक बिशप e7 ऑल्सो आई डिड नॉट लाइक बिकॉज आफ्टर डी and queen takes, king takes, I have doubled pawns and this isolated pawn. प्रैक्टिकली अच्छी नहीं लग रही ना. हाँ, प्रैक्टिकल अच्छी नहीं है. इवन दो आई एम अ पॉन अप, आई एम पॉन है, बट अपने डार्क स्क्वायर बिशप को डेवलप करने में थोड़ी दिक्कत होगी मतलब. तो बीटी है तो मेरे को अच्छी नहीं लगी थी. बट दैट्स व्हाई आई वेंट इनटू दिस. शी टुक ऑन c3, आई टुक ऑन c6, शी टुक ऑन d1, एंड हेयर ऑल्सो आई एम काइंड ऑफ लूजिंग ओनली -1 पोजिशन है क्योंकि ये कम्प्लीटली मिस्ड. आई थॉट कि नाइट d8 के बाद शी विल टेक ऑन नाइट b2 एंड नाइट b7 और इनका बिशप भी हैंगिंग है और मेरा नाइट डिफेंडेड है. ये मारेंगे तो मैं मार दूंगा और ये भी हैंगिंग है. इवन इफ शी डज दिस आई कैन जस्ट गो क्वीन f1, डू दिस एंड डू दिस, एंड दिस इज़ ओके. आई हैव सम डिस्कवरीज दो. दिस इज़ एक्चुअली अ लिटिल बिट अनोइंग कि अब मैं नाइट कैसे निकालूंगा बाहर. मे बी a5 a4 और समथिंग. जो भी निकल ही जाएगा. नाइट डायरेक्टली c4 पे आ रहा है. हाँ, क्योंकि नहीं दो पीस पड़ जाएंगे मेरे. नहीं, दो पीस नहीं पड़ेंगे. रुक है ना जरा वहाँ पे. हाँ, रुक भी है. राइट ऑफ कोर्स ठीक है. तो बट आई कम्प्लीटली मिस्ड कि यहाँ पे नाइट e3 भी है एक मूव, एंड हियर आई एम फोर्स टू टेक द नाइट बिकॉज अदरवाइज मैं बिशप चेक के साथ पिटेगा. एंड यहाँ पे दिस वाज probably the position which should have been equal pawns, but black has more activity. Yeah, this is not good for me. So that was a wrong calculation. 95 was a wrong move in this position, but anyways it panned out okay because यहाँ पे rook takes, king takes, bishop g4 and I am just a pawn up here actually. उन्होंने वो challenging move चली नहीं, बट स्टिल शी हैड एक्टिविटी. मैंने d4 चला, थोड़ा डार्क स्क्वायर बिशप को शंट करना था मुझे. यहाँ पे बिशप c4 चेक आ रही थी, बट आई वाज़न्ट सो स्क्वायर्ड. आई विल जस्ट गो हियर एंड पुट माय किंग ऑन g3 और समथिंग. यू वरंट स्क्वायर्ड. आई वाज़न्ट स्कैर्ड. ठीक है. एंड हियर आई प्लेड b3 क्योंकि आई डिडंट वांट टू अलाउ दिस. बिकॉज़ यू वर स्क्वायर्ड. यस, आई वाज स्क्वायर्ड. सो आई she went c5 एक्चुअली, एंड मैंने मार दिया और कुछ चारा नहीं था. अदरवाइज पिट रहा था पॉन. बिशप c5 एंड बिशप b2. यहाँ पे आई वाज फीलिंग ओके क्योंकि मेरे रुक्स आ रहे हैं प्ले में, एंड आई वाज गोइंग टू बी अ हेल्दी पॉन अप. शी वाज थ्रेटनिंग रुक d2. द की थिंग इन दिस पोजीशन वाज टू नॉट लेट हर रुक्स इन, एंड रुक d4, आई मीन b6. बेसिकली पॉन डिफेंड करना था. यहाँ पे f4 चल सकता था विद द टेम्पो, बट आई थॉट ये रुक वुक आ रहा है अंदर. बिशप्स भी ट्रेड करने पड़ जाएंगे आफ्टर बिशप टू g4. हाँ, यहाँ पे आके बिशप भी ट्रेड करने पड़ रहे थे, तो आई डिडंट वांट दैट. मेरे को लाइट्स का बिशप रखना था. एंड ऑल्सो एक और पॉइंट था कि अगर f4 चलता है, रुक c8 आ रहा करे ना, तो रुक c1 के बाद बिशप a3 भी है, एंड फिर मुझे ये ट्रेड करना पड़ता है यहाँ पे. तो भी कुछ भी नहीं था. आई वांटेड टू प्ले इट काइंड ऑफ बट आफ्टर दैट उसके बाद यू कैन प्ले रुक बिशप टू b2 एंड देन पुट रुक c1. नो, इफ ही टेक्स योर बिशप यू कैन टेक दिस बिशप. ओह, बट दैट इज थोड़ी बीटी है भाई. वो नहीं है नहीं, कैसे बढ़िया तो है उसका बिशप. एक्टिव नहीं है क्या? बट तेरा रुक कितना एक्टिव है, उसकी बैक रैंक वीक है. ये भी है, ये तो है, कर सकता था डेफिनेटली, बट आई वांटेड टू प्ले इट अ लिटिल बिट सेफ. मेरे को बस ये प्लान था पहले इसके एक्टिव बिशप्स को शंट करते हैं, तो ये करके b4 चला. दिस इज़ बेस्ट. यहाँ पे पूरा बिशप थोड़ा अजीब सा हो गया. नाउ रुक c8 के बाद दिस इज़ अ क्रिटिकल मूव,
आई मीन ठीक है, क्रिटिकल है. बेस्ट मूव चली थी रुक डी C1, नॉट रुक ए C1, बिकॉज रुक ए C1 से दिक्कत ये थी बिशप A4. ऑफ कोर्स यू कैनॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैनॉट ट्रेड because bishop d1 comes with check, and you cannot move your rook up because your rook is hanging, so you have to move your rook passively to e1 or somewhere, which is something I did not like. So I played rook d c1, she played h6. यार इतना lag हो रहा है रुक. I played f4, just opening up my bishop यहाँ आया. अब king f2 नहीं चलना था मुझे. I did consider king f2, but I played king e1 because in some lines I didn't want the rook to come here. अबे तो किंग यहाँ क्यों नहीं गया? किंग d2. d2 हाँ, पिन हो जाता ना बिशप, मेरे को अच्छा नहीं लग वो रहा तो ट्रेड करके तेरा रुक आ रहा है. था. बिशप f6 नहीं, वो तो ट्रेड कर ले, तो वो तो रुक उसका हट गया. जब भी तेरे को पिन की परवाह हो तो यू कैन नहीं, ट्रेड. फिर यहाँ से ये बिशप चेक आएगी कुछ. नहीं, तेरा किंग यहाँ पे है ना, d2 पे. नहीं किंग d2 से अगर मैं ट्रेड किया, ये किया, तो बिशप a4 चलेगा तो क्या करूँगा? नहीं, एक बार जैसे किंग d2 चले एक बार पहले. मतलब मे भी हो सकती है मूव, हाँ, डेफिनेटली हो सकती है. अब यहाँ पे वो क्या चलता? मान ले बिशप a4 चला. अच्छा, तो ट्रेड करके दूसरा रुक लिया. अगर तेरा ट्रेड, अगर मतलब ट्रेड तो कभी भी कर सकता है. ट्रेड तो करना ही था. करना ही है तो वो अभी कर सकता है. तो तेरा किंग यहाँ पे एक्टिव है. मैं d2 क्यों नहीं लाया? कुछ तो था रीज़न. बिशप f6 अभी भी ट्रेड कर ले. अच्छा वो ट्रेड कर लेगा ना, लेकिन वो ट्रेड करेगा तो कर ले. वो अगर बिशप लाता है तो रुक ऊपर ले जा. 7-7 मार दिया. मार दे. कहीं पे साइड एडमेंट चले जा. अबे पॉन पिट गया भाई. अबे उसका भी तो पिट रहा है. अबे अच्छा, नहीं पिट रहा क्या? वैसे सही बात है भाई. नहीं, सही बात है. वो तो चेक दे के क्या पता बचा भी ले. क्या चेक देगा? ये तो वैसे इधर जाएगा तो कोई चेक वेक नहीं आ रही. ठीक है. ये क्यों नहीं मार सकता है? मतलब ये हाँ, ठीक है. अरे ठीक है, छोड़. तो बढ़िया. ये हो रही थी. बट एनीवेज ये हुआ रुक d c1 f4, ये हुआ किंग e1 चला. बेसिकली रुक इनफिल्ट्रेट. यहाँ पे मुझे लगा रुक c4 के बाद ये तो विनिंग है, क्योंकि मतलब विनिंग क्या बेटर हो गई है, क्योंकि अब मेरे को फाइल मिल गई. अंदर चला गया मैं. अच्छा, उसने पॉन पुश क्यों नहीं किया यहाँ पे जब उसका बिशप में? कहाँ पे? ये हाँ, मैं a7 मार अच्छा, लेता राइट शायद. पिट रहा है पीछे. यस. तो मैं ये c4, फिर मैं यहाँ पे अंदर गया. यहाँ पे मुझे लगा ठीक है कुछ तो हो रहा होगा, बट रुक d7 वाज गुड. आई थॉट यहाँ पे भी g6, सॉरी किंग, आई वाज होपिंग फॉर किंग h7. आई वुड गो बिशप e4 g6 एंड रुक h1, बट शी प्लेड करेक्ट मूव. यहाँ पे उसने ड्रॉ ऑफर करी. मैं पीछे आया, बिशप यहाँ लेके आई. बिल्कुल परफेक्ट मूव है. एंड आई ट्रेडेड द बिशप विच वॉज द गुड चॉइस, कि उनका एक ही एक्टिव पीस था, क्योंकि ब्लैक बिशप तो स्टंटेड है. तो आई डिड दिस एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग द एंड गेम. लिटिल बिट इनएक्यूरेट. h3 वगैरह इनएक्यूरेट नहीं थी. इट्स ओके, ऑल ओके. यहाँ पे g4 आई थिंक इनएक्यूरेट है. आई थिंक ही इज सेइंग कि किंग बाहर लेके जाओ कहीं पे, इंजन कहता है. बट आई डोंट नो, आई वाज अफ्रेड ऑफ ऑल दीज चेक्स. सो मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल करके ये किया. एंड हियर आई पुट माई rook attacking the bishop, and she went passive, and here I knew that okay, I can slowly push this. I would just made some play in the king queen side. यहाँ पे I think she wanted to do something. I don't know why. King h7, a5. I took rook f7, a6, and मेरा pawn इतना advanced था. I knew I could slowly grind this. So bishop c5, फिर bishop d6. यहाँ पे actually एक good move थी bishop d8, but I thought रुक c8. हाँ, rook c8. I thought ये आ रहा है, बट अपेरेंटली दिस इज़ ओके. क्यों? आफ्टर आई थॉट ये मुझे नहीं देना था, बट यहाँ पे मुझे बस सिंपली बिशप वापस लाना था. एंड शी कैन, बिशप इज़ बेसिकली ट्रैप्ड वेयर एवर शी गोस. आई कैन जस्ट पुश दिस. सो आई डिड नॉट सी इट प्रॉपरली, कैलकुलेट नहीं किया ढंग से, बट दिस आई सॉ वाज सिंपली विनिंग. तो मैंने ये कर दिया, किंग g6, फिर मैंने g5 चला बिकॉज द पॉन वाज पिन्ड. फिर मैंने मार के उसने रुक ही दे दिया. फिर मैं यहाँ पे भी सोच रहा था कि ड्रॉ वो ना हो जाए कुछ. नहीं, देयर वाज सम लाइंस की में ना क्या हो रहा था कि ये पॉन ट्रेड हो जाते थे, और फिर जब तक मैं ये पॉन मारने जा रहा था ना, तो उसका किंग मेरे को शोल्डर करने आ जाता. तू सीधा मारने भाग जा. हाँ, वो कर सकता था, लेकिन हाँ मैंने वही सोचा कि किंग g6, किंग इधर, ये यही था. सोच रहा था, बट उसने कुछ यहाँ पे ना किंग g6 नहीं चला, किंग g7 चल दिया. फिर मुझे लगा फिर मैं ये सब क्यों करूँ. मैं फिर यहाँ पे आ गया, ये आ गया. फिर मैंने e4 चला, ये किया, मैंने ये किया, मैंने पुश कर दिया, फिर ये पॉन मार दिया. फिर जस्ट कन्वर्ट कर दिया इसको. सो या दैट वाज द गेम बेसिकली. So yeah, it was a bit of a long grind, but yeah, it was satisfying to win that. And let's go to round number 8, Nimang's game. Well, I'll leave you to it.
राउंड इट मैं थोड़ा ज़्यादा सो लिया था दोपहर में, हल्का सा सर दर्द हुआ था, बच्चा था ओपोनेंट, 1647 रेटेड था आई थिंक, रियान ऐसा कुछ नाम हाँ था, ईशान हाँ वन ऑफ दोज मॉडर्न नेम्स। ठीक है, अच्छा खेलता था, जो भी है। इन दिस पोजिशन E4 E5 की नॉर्मल इटालियन गेम थी, बट आई वॉज ऑन द ब्लैक साइड ऑफ इट एंड क्या ही बताऊँ मैं, बेसिकली भाई इसका जो ओपोनेंट था ब्लिट्स मार रहा था, बुलेट खेल रहा था वो, आई मीन लाइक इन द एंड ही वाज डाउन टू पूरी एंड गेम आई के टेल end यू, में। हाँ लाइक ऐसा भी नहीं कि मैं कोई लेट वेट आया था या कुछ, बट बाय दिस मूव वो मेरा ओपोनेंट की 1 hour 33 minutes थी। स्टार्ट होते 1:30 पे हो, 1:33 उसको सब रटा हुआ है पूरी E4 E5 अपेरेंटली। ऐसे भाई इसके मुंह चलते ही पट मुंह चलते रहा, एंड मेरे तो लाइक मैं सोच सोच के चल रहा था धीरे धीरे, तो इसके 20-30 मिनट पे आ गया था ये तो। यहाँ पे लाइक स्टैंडर्ड एकदम सही खेली है मैंने। यहाँ पे A4 नहीं आता क्या? A4 इस पोजिशन में तो A4 पॉइंट पर मर जाएगा। ओह ऑफ कोर्स या, तो यहाँ पे स्टैंड ठीक खेलिया मैंने, मारा एकदम सही है उसने ऐसे मारा। एंड D5 भी सही मूव है सरप्राइजिंगली, जो बाद में मुझे D5 पता इज चला। गुड। ओ भाई वो लाइन दिखाएंगे अभी ठीक है, दिखाएंगे माय ओपोनेंट प्लेड बिशप टू G5 here and एंड अब बीटी हो रही है। Namang played a great move bishop c5। अरे वे बीटी हो रही है भाई, मैं क्या करूँ मैं यहाँ पे, लाइक बेसिकली D5 पे बहुत प्रेशर है। देख मैं अगर डी टेक्स ई मारता हूँ तो नाइट से मार देगा, एंड मेरे नाइट पे F3 वाले नाइट पे प्रेशर होगा, दिखा दे। हाँ ठीक है, अब ये पोजीशन ये तो मैंने देखा, मैंने डिस्कार्ड कर दिया आफ्टर सम थिंकिंग, ठीक है। एंड इस पोजीशन में लाइक और कुछ नहीं कर सकता मैं इसके बिशप को थ्रेटन करता हूँ अगर, तो बिशप टेक्स नाइट मार देगा, स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। अगर क्वीन से मारूंगा तो सेंटर का पॉइंट चल जाएगा। फॉर एग्जांपल जस्ट लेट मी शो, अगर ये किया तो ही कैन जस्ट टेक, एंड आफ्टर इफ आई टेक विद द क्वीन देन ये पॉन सैग मतलब बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है, बिकॉज इफ माय नाइट कम्स बैक c4 मतलब C4 आ रहा है, एंड दिस इज लाइक वेरी बीटी, क्योंकि उसका इतना ही नहीं है, ये भी प्लेएबल है, बट उसका नाइट भी यहाँ पे आ रहा है, ओ नाइट e4 भी आ रहा है। ओह माय गॉड, एंड बहुत ही ये क्या हो गया सर? ठीक है जो भी है। अबे किसकी मूव है? अच्छा ब्लैक की मूव थी। एरो बना रहा था ना मैं, अच्छा एरो बना रहा था, ओके 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 उसका नाइट आ रहा, बट ठीक है। अच्छा अच्छा हाँ। तो इन दिस पोजीशन आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन मैंने कहा कि कोई नहीं, स्ट्रक्चर बिगड़ने देते हैं, बिशप को वापस लाते हैं डिफेंस के लिए। इतना बुरा लग रहा था, मैं बहुत टाइम स्पेंड कर दिया मैंने, आधे घंटे से ऊपर सोचने में, बट ठीक है। बट दिखा अब बट यहाँ पे बेस्ट मूव क्या थी? द सरप्राइज थिंग इज दिस पोजीशन इज इवन बिकॉज ऑफ दिस मूव। सो अगर ये चलेगा लाइक वी डिस्कस्ड, द करेक्ट मूव, यू सैक द क्वीन। ओह नो माय क्वीन। ओनो नहीं भाई, ये तो सच में ओनो है भाई, क्योंकि डेंजरस है ये भाई। ये And क्या लाइन you थी, take- तुम देखना ये भाई। ये गाय यहाँ पे क्या था? King पोजीशन F1। गाइस। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्वीन d2, यू प्रोटेक्ट द क्वीन फर्स्ट, क्वीन D2 या क्वीन क्वीन C2 d2 and then knight d3, राइट? हाँ knight d3, या नाइट D3 चेक, knight d3 चेक, king f1 और फिर रुक टेक्स d8। एंड और रुक लिया। रुक लाएगा तो अगर हाँ? उनका रुक नहीं मारना, क्या करना था? d4 हाँ, d4 था क्या? अरे ये वाला रुक में तो मार भी सकते होंगे, अगर मान लो दूसरा रुक ही लिया है, ये वाला रुक तो हाँ। मार सकते होंगे। ये वाला रुक मार सकते हैं। हाँ दूसरा रुक ले आया तो e4, हाँ और अगर नाइट मूव किया कहीं पे तो क्या था? और बहुत डेंजरस पोजीशन ये है। नाइट f4, हाँ और अगर क्वीन कहाँ जाएगी? जा ही नहीं सकती, कहीं भी जाएगी तो e3, एंड थ्रेटन E2, मतलब कुछ हो रहा है, समझ रहे हो? ओह भाई मतलब बेसिकली मतलब कुछ तो खतरनाक beat हो रही ही है यहाँ पे, पीस प्ले कुछ सम हो रहा होगा भाई। मेट होगी क्या? अबे अच्छा ये देखो ये भी मार दिया। अबे ये अबे वो तो पॉन मर गया भाई, ऐसे खेलना नहीं आता। कुछ अब तो था। बिशप की चेक देना, बिशप की चेक। अच्छा नहीं, कहाँ पे? बिशप की ये चेक बोल रहा था, बट नहीं ये भी बेकार लग रही है। इंजन देखते हैं। अबे क्वीन बनानी, ये भी भाई सही खेली हमने। ये थी ना? हाँ 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 ओह गलत खेल लिया हमने, बीच में कुछ गलत अबे खेल लिया। ठीक है। बट रुक पॉइंट E6, इज हाँ रुक E6 चल के इधर से लाना है, रुक लिफ्ट करना है बेसिकली। मतलब ठीक है, बेसिकली प्योर dangerous पीस position प्ले है। बहुत बहुत मस्त है ये इस आइडिया। पोजीशन में मैंने यहाँ तक देखा, एंड क्वीन D2 के बाद मैंने देखा यार कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। I lost my queen for 2 pieces and which is very reasonable. I mean I abandoned this idea मैंने, क्योंकि इतना मुश्किल कौन देखेगा भाई। even grandmasters can't see this. मैं D5 तक देख के आया था भाई। हर मूव में हर गेम में एक एक चीज सीख रहा है। लास्ट गेम मेरी एक और E5 E4 E5 की हुई थी, आई थिंक सेकंड गेम ही थी।
उसमें मैंने D5 नहीं खेला था, D5 करेक्ट मूव थी, तो आई लॉस्ट। इस गेम में D5 खेल लिया, आगे का नहीं है। बट ठीक है, एनीवेज दिस हैपेंड एंड यहाँ पे अटैक आ गया बुरा वाला। आई ट्राई टू ब्रिंग माई नाइट बैक, बिशप भी ला सकता था, आई थिंक बिशप वॉज अ बेटर ट्राई, बट आई डिड कैलकुलेट बोथ, मुझे नाइट बेटर लगा। एंड यहाँ पे ये चेक आ गई, उफ। आई कैनॉट गो टू H1 क्योंकि फॉर्क लग रही है, नाइट टेक्स F2 F7 H8 या एंड ऊपर जाऊँगा तो नाइट F5 आ जाएगा, तो मैं इधर गया, क्वीन आई, मैं रुक ऊपर लेके आया टू प्रीएम्प्टिवली डिफेंड F6। ये बेस्ट मूव बता रहा है, बट मतलब कुछ यहाँ पे तो बेकार ही है ब्लैक की, बट उसने ये मार दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ तक भी वो बंदा फटाफट खेल रहा है, एक मिनट तक मिनट में सोच के खेल रहा था वो। हेयर आई प्लेड क्वीन मुझे लग रहा है रटी हुई है यहाँ तक हाँ, उसे। उसने सब रटा हुआ था भाई। यहाँ पे आ गया ये, बट वापस ले गया। यहाँ पे आई वाज स्कैर्ड कि वो पॉन टेक्स ये मार देगा, डी टेक्स ई टेक्स डी, एंड इन दिस पोजिशन आई कुड डिफेंड माई रुक, बट आई ऑल्सो लॉस्ट अनदर पॉन, एंड उसका अब ये मेरा सेंटर और भी वीक है, और ये एरो ये ठीक है वो वहाँ पे आ रहा है वो प्यादा, या डी इज थ्रेटनिंग D4, बट ठीक है, ही डिडंट टेक, वापस चला गया। यहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है, आई गॉट अ गुड फीलिंग जब वापस गया। मैंने कहा एक प्यादा ही गया, कोई नहीं, आई कैन मैनेज। क्वीन वापस गई, मैं क्वीन लाया, क्वीन ट्रेड्स हो गई यहाँ पे, एंड आफ्टर दिस यहाँ पे ब्लाइंड हो गया मैं, एंड आई थॉट कि वो मेरा रुक मारेगा, मैं उसका रुक मार लूँगा, बट मेरा पीस एक्स्ट्रा जा रहा है, बट वो भी उसने भी नहीं देखा, वो भी ब्लाइंड हो गया, उसने म्यूचुअल ब्लाइंडनेस होगी, रुकी टू चल दिया, उसने रुकी टू चल दिया। मैं रुक पीछे लेके आया, डिफेंड, एंड इन दिस इज लाइक ऑल फाइन एंड ऑल अंटिल दिस आई प्लेड E4, yeah, I played E4 in this position, and E4 से better knight F4 भी is okay, although white की advantage है, but एक pawn के बराबर है, उससे ज़्यादा नहीं है। my opponent went knight to E1, ये है in this position मेरा जो correct move थी, simply मुझे knight मार के खेलना चाहिए था, I should have played this and played F4, but in this position the idea of H5 H4, yeah, in this position मुझे ऐसा लगा कुछ प्ले नहीं है, बिकॉज वो किंग F1 खेलेगा और उसके बाद ईजिली F3 पुश कर देगा टू डिस्ट्रॉय माई सेंटर, तो मैंने ये खेला नहीं। आई कैलकुलेटेड दिस लाइन इनकरेक्टली, उसने नाइट मार दिया, आई प्लेड F4 एंड उसने नाइट मार दिया, आई टुक बैक, ही टुक द पॉन, आई पुश्ड F4, he brought his knight here and I went king here. यहाँ पे he missed a minute detail, which pause is the video and check it guys, what's the winning move for white, because currently white is losing in exchange if he takes the bishop, yeah, otherwise he's losing the knight, and the knight cannot be defended because the f pawn is pinned and the rook cannot come to defend because the bishop is holding the diagonal. yeah. The only move winning for white is this G4. ये देख के कितना बुरा लगा, मेरे ओपोनेंट ने भी मिस कर दी थी, उसकी शक्ल से पता चल रहा था, बट ऑफ कोर्स अब ये दिख ही जाएगी बिकॉज इज द ओनली मूव है, तो दिख गई। एंड आफ्टर दिस आई कोलैप्स्ड and my opponent mated me, didn't mate me but he checkmated me. He didn't checkmate me but he finished the game in style, tried my king with his rook in the middle. I had to sack the rook and इसके बाद तो गेम में कुछ भी नहीं था, I just kept playing for the heck of it and the game ended sadly in a loss. वही चल रहा है, सुबह जीतो शाम को हारो। यहाँ पे इसके ऑपोनेंट ने नई स्कोर शीट ली और सब कुछ नाम वाम लिख दिया, रेटिंग वेटिंग सब लिख दिया, उसके बाद इसने रिजाइन किया। स्मॉल सेटिस्फैक्शंस इन लाइफ आर व्हाट वी लिव फॉर गाइस। Anyways, so last round for mine, it was a good game. We'll see what happened in the game. Last round for mine, guys. Terrible English, main floor में ऐसी आ रही है, but ठीक है। तो C4 खेला, Knight F6, I played Knight F6, C4 देख के बीटी हुई थी, but ठीक है, I went into transpose into D4 lines, D5 खेला, A3 to stop all these Nimzo Indian, क्या बोलते हैं इसे, Nimzo बोलते हैं ना, पता नहीं भाई, हाँ निम्जो इंडियन लाइंस होती है जिसमें बिशप मार के कर लेते हैं, तो ये रोकने के लिए A3 चला उसने, बिशप E7, बिशप F4, उसने वाइट ने बहुत स्लो सी ओपनिंग खेली थी। यहाँ पे आई वाज थिंकिंग सम लाइंस कि क्या करूँ, B6 करूँ क्या करूँ, बट इसके कुछ थ्रेड्स भी थे
and I felt like I was developing a little bit slow, so I struck in the center with c5 correctly. Struck. I struck in the center with c5, and एंड यहाँ पे मुझे अपेरेंटली मार देना था, बट दिस इज़ इंजन लाइन बोलता है मारना, बट दिस इज़ एक्चुअली अ प्लेइंग स्टाइल प्रेफरेंस, ये मैंने देखा हुआ है. तो यूजुअली आई लेट देम टू टेक इन द सेंटर एंड कीप माई स्पॉन्स इन द सेंटर. सो आई प्लेड b6, queen c2. This is all equal for now. Bishop b7, my bishop is developing, but it is all natural. मेरा मस्त pieces में आ रहे थे, but the thing is he was playing too slow. I mean, he had to relieve the tension in the center so that his pieces can come out into the proper squares. यहाँ पे मेरे pieces रुक वुक आ रहा है, सब आ रहा है. And he played h3 here. I mean, the idea I get it, because I was maybe threatening knight h4 in some lines and he was taking the bishop. But this was, I knew that way too passive for this. So now my rook is coming, all my pieces are in the game, and it was a bit tough for him to handle the pressure. And मैंने इससे मारा, and I didn't want to get to an IQP kind of position, so I took with the knight and planning that कि ये मारेगा तो bishop से मारूंगा, and there is a lot of threats. He brought his bishop back, and here I just took on d4, d4, cd4, and now I knew that there is a humongous pressure on this pawn. I have lots of threats. If this rook ever moves, I have some bishop a3 ideas, bc3 and rook c3. I mean, there is a lot of pressure. It was getting cramped. So I played knight f6. स्किप कर दी भाई, इतनी मस्त लाइन तूने स्किप कर दी भाई. Oh, right, of course. इसमें एक लाइन थी जो मैंने कल देखी थी briefly, which was b5. The point was कि ये knight pressured है. I also saw bishop b4 here. I also tried to make bishop b4 work, कि भाई bishop b4 लाऊंगा and pawn b4, knight b4, queen कहीं जाएगी, let's say queen d2, yeah, maybe queen b1 something, and maybe I have something, you know, कुछ ठीक है. after knight f6 actually, not here, but after knight f6 I tried to make this work. But the main move here is actually b5, जो मैंने देखी थी, but I discarded it the moment I saw bishop b5, and मुझे कुछ दिखा नहीं यहाँ पे. But apparently bishop b5 के बाद there was this move. No. कौन सी थी? Knight c3. Knight takes c3, bc3, and then queen a5. And if you take this, I have rook c3, queen d2, bishop a3, bishop a6. Bishop a6, basically trapping the king in the center. And if you do something like rook b1, I mean, my plan is to just take on a3 and then do this. So let's say rook b1, bishop a3. Rook b1 is the best move, by the way. Bishop a3, and now I'm threatening this. And let's say you move that bishop, or कुछ ये bishop चल रहे, maybe, I don't know. Yeah, if you do something like this. No. You go bishop to c1. Oh, right. Bishop c1. That was the move. Bishop c1, and if you take, this is checkmate. I mean, क्या hilarious line. बहुत crazy line. Gadri line, because to pressure the queen in such a way that and paralyze white. ये देख लेता, मतलब ये इतना of course नहीं देख पाता. But this is the level of chess we are aiming for. Yeah. But anyways, my idea was kind of similar. I played knight f6 with the idea that, okay, I can pressure the knight, I mean take, and then pressure with e4, knight e4, basically the pawn. He played queen b3, getting out of the pin, and I played a6 with the same idea, but little bit slower, that b5 b4 push करना है मुझे. He castled. I played bishop d6. इसका एक लौता active piece था, उसको trade कर लेते हैं. I was expecting maybe knight e5 or something, which I was okay with. उसने नाइट मारा, मैंने बिशप ट्रेड कर लिया, उसका गुड बिशप था, एंड आई टुक द नाइट. एंड नाउ दिस पोजीशन, इफ यू सी, माय नाइट इज इन द सेंटर, इट कैन नॉट बी डिसलॉज्ड. इफ द बिशप टेक्स द नाइट, देन आई विल पुट माय बिशप इन द सेंटर. a6 इज स्लाइटली अ टारगेट राइट नाउ, बट दैट्स फाइन, द बिशप इज डिफेंडिंग. लास्ट मूव में तूने क्वीन ट्रेड या फिर नाइट टेक्स वगैरह सोचा? यहाँ पे सोचा था मैंने, बट मुझे ये आइडिया नहीं दिखा. हाँ, बिशप टेक्स बिशप के बाद ये आइडिया था, मैंने ये सोचा था कि ये मार दूंगा. हाँ, ये मार दूंगा क्वीन से. यार, हाँ, क्वीन से मारूंगा. तो अगर वो क्वीन से मारेगा तो आइडिया क्या था? हाँ, रुक, लेट्स से नाइट टेक्स. माय आइडिया इज रुक c2, यही था ना? नो, व्हाट इफ ही प्लेज, आई एम मिसिंग समथिंग हियर. नहीं, क्वीन टेक्स में कुछ तो लाइन थी यहाँ पे. आई डोंट नो. बिशप आ रहा है क्या? अरे बिशप f3 आ रहा है ना. अच्छा नहीं, बट उसमें तो क्वीन ही मार देगा. नहीं, यहाँ पे आई थिंक क्वीन टेक्स इज द बेस्ट मूव, विद basically saying that endgame is good or something. Okay. But okay, I went for this. He went queen g3. I don't know, some knight g4, knight h6 threats. और bishop takes क्यों नहीं चला तूने? Bishop takes पे a6 पिट रहा था, मतलब queen भी हिला के वापस लाना पड़ता मुझे, या b5 चलना पड़ता. अच्छा, और एक और बात बताओ, अगर queen takes पे queen takes b6 मारेगा तो?
मेट हो रही है. अच्छा मे ऑफ कोर्स मे राइट. तो यहाँ पे नाइट टेक्स मारा, नाइट सेंट्रल था, मस्त अच्छा लग रहा था यहाँ पे. तो हियर आई हैड टू ऑप्शंस. आई कैलकुलेटेड रुक C2 एंड ऑल्सो क्वीन F6, बेसिकली प्रेशरिंग दिस पॉन. आई वेंट फॉर क्वीन F6 क्योंकि मुझे ये लाइन में थोड़ी सी बीटी हो रही थी. आफ्टर बिशप D3, रुक B2, रुक C1 इज कमिंग एंड ऑल्सो नाइट H4, नाइट H6. मेरे को आई सॉ some counter play for him which I did not want to give. So I played queen F5 with certain ideas of knight F4 because the bishop is kind of iffy here. Because if the bishop moves anywhere else, let's say यार वहाँ का एरो मत बना. मुझे बेसिकली चेक भी दे सकता हूँ. एंड ऑल्सो आई हैव थ्रेट्स ऑफ रुक C2, ये some combination of this. Anyways, so he played queen E5 seeing all these threats, traded queens, but this I knew was better for me slightly. तो मैंने रुक C2 चला, पॉन मार दिया. यहाँ पे अपेरेंटली बिशप F3 चलना था थोड़ा यहाँ पे प्रेशर बनाते हुए, बट ही डिड द सेम थिंग विद द लॉस ऑफ अ टेम्पो. I did this because if he moves the bishop, I take the d4 pawn. He traded rooks, which is what I needed, and I took the c file. And here I was really happy with the position. I was a pawn up, I have the c file, I have a beautiful knight in the center, and I have a bishop to support it. And the only drawbacks is maybe the back rank, and maybe how to progress here. But surprisingly, I was a little bit calm today, and though I was very low on time, again on 2 minutes, and he had like 27 minutes or something. I think there was a 20 minutes deficit, not this much. I played rook C7 with the idea कि knight हिलाऊंगा या rook B1 या कुछ चलेगा तो knight C3 आ सकता है. पहले knight C3 नहीं आ रहा था because the bishop was hanging and the rook was also attacked. He went knight D2. I went G6 calmly because I need to get rid of the back rank. I played rook C3 here, attacking this pawn. He pushed A4, which was something I expected, and here I thought I would go rook A3, but I did not like the idea of knight C4 क्योंकि after knight C4 if I take this, knight B6 आ रहा है, and if I take on B6 then bishop B7. I have an outside passer in the H pawn, but it's a knight versus bishop endgame and I did not feel that confident about it, so मैंने avoid किया ये. I took a practical decision and attacked the knight again. Rook C2, because now if he goes anywhere then I go rook A2 and the same thing is not happening. He went knight E4 with the idea of knight D6. I did not care. I went rook A2. He went knight D6. I went bishop C6, attacking this pawn. I thought rook C1 चल के कुछ तो threat बनाएगा यहाँ पे with knight E8, knight F6 ideas. ये मैंने यहीं पे देख लिया था ये सब आ रहा है. तो यहाँ पे when he took, I had two options. I was pondering a lot. I took already low time में मैंने 1-1.5 मिनट ले लिया था कि ये मारूँ या ये मारूँ. I wanted to take here to create another passer, but I decided to do this and keep the structure safe and also ideas of G2 को attack करते हुए. Just for information, pawn takes on D5 is actually winning and it's the better move. Yeah, it is the best move. Yeah, because एक और passer है, यहाँ पे भी passer बन रहा है and there is no threats of E6. मार दूंगा मैं. Bishop D5, rook B1. Idea कि B6 मारना है. I cannot defend it. I just went for this end game where I'm having an outside passer and I have a beautiful bishop to support it. Rook A1 check दिया, king A2, and यहाँ पे I was thinking a lot whether to push A5 or do something about this. The best move is king F8 here, I think. But I decided to go A5, seeing that कि rook B8, seeing that कि knight E8 के बाद कुछ नहीं हो रहा. Not rook B8, starting with knight E8 के बाद कुछ नहीं होगा. I'll play H5 and I'll safely sit here even if he comes on F6 and tries to do something here. So I pushed A5, he went knight E8 and यहाँ पे actually थोड़ा डर गया था क्योंकि knight E8 मैंने I didn't think, I thought he would फटाफट वो check back दे देगा. Knight E8 जब चला I had to think a bit and I played the best move, H4. The idea was basically that I need to stop his G4 because whenever he pushes G4 I can go H4 and threaten the mate here on H1, but also create some room for the king of course. And king G7, knight F6, rook B8. यहाँ पे I was very low on time, literally playing on increment, but I still played the best move G5, correctly sacrificing this pawn just so that the king can escape, because my trump in the position is this A pawn and I had to use it. There's a funny line here actually in this position. Black can draw this game by just giving this check. White can draw this game. Oh right, and yeah. When black wait, yeah, I'll show it to you. So G5 is a draw, but I didn't know that it was a forced draw. I could not calculate, but the line is something like this. Yeah, you go there. Yeah, F4, right, of course. And if you take on F4, H5. H5, and the thing is that no, H5 yeah, nahi. H5 Check is first. the move.
H5 is the move. Oh, h5 is the move, and if I push, then you just check Yeah, here, you king check, g6, and then you and you take. take here, and this is a draw. And of course, I did not see it in such less time, but so neither did he. I went g5. मेरा idea ये था बस कि king g6 यहाँ से निकलते हैं. He took on h5. I went for g6, king g6. I thought he'll play knight g3, stopping my escape squares, but I wasn't even worried about that because whenever he gives a check, I come back and attack it, and that was fine with me. So he went knight f6, which is actually the best move in the position. I went king f5. He went knight g4, which is inaccurate. I think the best move here, I'm not sure. I think rook f8 or something was best. I don't remember, but एक बात बता, I was Hmm. just wondering in the last position. yeah. अच्छा, नहीं, okay, it's fine, nothing else. Sorry. So king f5, and he went knight g4, defending this pawn. And here I was pondering over whether I should just निकल जाते हैं बाहर, अभी निकल जाते हैं, but I had planned कि जब rook f8 आएगा तब निकल जाएंगे. I'll sack this pawn as well. अभी equal pawns हैं, but I was ready to sack that pawn. But I missed I played a4 here, but I missed this idea of a3, because if I do this, then he goes here actually, and if I go a2, he has rook h6, and even if I queen, he goes king g3, and doesn't matter if I queen, he's going to mate me. So this was a crazy line again, which I completely missed. But yeah, he went rook f7, I went king f4, he did not play f3, but यहाँ पे मुझे निकलना ही था क्योंकि I knew that ये f3 पहले चल देगा. फिर उसने मारा, I played a3, he went knight f6, and यहाँ पे I was very low on time, so I kind of blindsided. मुझे pawn मार लेना था, which is winning, completely winning, because if he takes, I can, I think, take with the pawn as well, and it's another passer. But I completely missed that the pawn was hanging, and I played this thinking that if he takes this, I'll take this, the pawn is undefendable, and if he puts the rook or something, I'll take with the king, and it's okay. But anyways, this is a draw now, by the way. एक tempo से draw हो गई. He played rook d7, मेरा king को cut off करने के लिए, क्योंकि I was coming here. I played this here. At this point, I knew that this was maybe a draw, and he was also head bobbing here. बिल्कुल calmly ऐसे इतनी देर से पट 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 मार रहा था clock को, यहाँ से ऐसे 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 कर रहा था clock को. But anyways, he played king f3, and here I saw some hopes because I played rook b8, rook b1, sorry, with the idea कि मैं ये check करके इसको इधर बिठाऊंगा और कुछ ये कर दूंगा. He played rook a7, which is what I was expecting. I played rook b3, king e2, rook b2, king d3, and a2, and I was like कि ठीक है, मेरा rook passive नहीं है a1 पे, and now the pawn is also on a2. The move which I was expecting here from him is king e3, after which I didn't know what to do. Literally मेरे को लगा e5 चलूंगा, कैसे progress, ये draw है, यहाँ पे draw है. वही मैं सोच रहा हूँ कि like progress कैसे है. King e3 draw थी, but he played g4, and यहाँ पे I played a classy move. I mean, I could have gone king e5, but I played king f4 with the idea कि I'll go here, and of course I saw कि rook f7 check आ रही है, but I thought कि rook f7 check आएगी तो फिर यहाँ पे जाऊँगा, and he has to waste a tempo going back, and then I'll take this f2 pawn. तो ये बड़ा अच्छा आइडिया था कि सीधा e5 मत जाओ. Of course you are going to come to e5, but go f4, provoke his room to come out, and then come here, and then go, if he goes to h7, then take this. And he went king c3, and here it was like literally over. I was going king f4. I did not want to go here and allow this idea. I mean, why give him any counterplay? He went here, and यहाँ पे मज़ा आया मुझे. ये अगली 5 में नोटिस करना. ये चला, उसने ये चला, मैंने ये पुश किया, उसने ये चला, मैंने ये पुश किया, मैंने ये पुश पीछा कर रहा है वो. लिटरली 4 मूव में पॉन पुश कर दिया, फिर से भी ऊपर गया. फिर से ऊपर गया. अब पुश नहीं कर सकता था. हाँ. I just went king f3, rook h3, king b7, king here, and यहाँ पे एक अच्छा आइडिया था. I was thinking कि जब यहाँ पे था ना king, I thought if you take here, I was not going to make a queen, I was going to make a knight. मेरा नाइट ले लिया था हाथ में. मैंने एक्चुअली, मुझे लेना नहीं चाहिए था नाइट में. मैंने ना उसके सामने से नाइट उठा लिया, उसको समझ आ गया शायद. तो क्योंकि यहाँ पे तो इस कम्प्लीटली विनिंग, आई जस्ट टेक द रुक. तो ही प्लेड, यार बड़ा कूल होता है अंडर प्रमोशन. किंग d2, आई प्लेड किंग f3, rook h3, king d7, check, and I queen, and here he resigned. It was a long game, but it was a good game. Cool game, अच्छा man. लगा था. So yeah, that was today's analysis, guys. I'm on 5 out of 8, and Nimank is on 4 out of 8. Yeah. There are some chances for me if I win the game tomorrow, but I'm not going to think much about it. I'm going to stay out of the pressure and just play the. ऐसे कह रहा है, इसके फुल चांस है. हार जाएगा तब भी जीत जाएगा भाई. हार जाएगा तो भी चांस है इसके. देखो इसके वो बहुत अच्छा. प्रेशर मत दे भाई, प्रेशर मत दे.
So yeah, that was the game analysis, and hope you like it. Wait for the final video tomorrow, because with that the tournament will end. And also, just on a side note, we met the CEO of Kingdom of Chess. It was a great conversation. He's Very a cool great guy, man. super cool guy. We are actually inspired by it, and we are going to take a page out of his book and do some inspiring things in with the chess community Yeah. as well. So yeah, on that note, let's sign off and say good night. Tata, see ya, bye Bye bye, bye. take care.